अपन आ गए थे रिएक्शन नंबर 8 पर। 3-phosphoglyceric acid change its phosphorus group from third carbon to second carbon. That's why the name become 2-phosphoglyceric acid. And this reaction is normally position isomerization, and of course there is a formation of two molecules of each of these. So reaction is isomerization, that's why the enzyme required is. एंड रिएक्शन में आइसोमेराइजेशन ऐसा हुआ कि मेयरहॉफ नाम के साइंटिस्ट ने इस पोजीशन आइसोमेराइजेशन को म्यूटेशन से कंपेयर किया। और आप जानते हैं म्यूटेशन किसे कहते हैं? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का अल्टर हो जाने को भी म्यूटेशन कहते हैं। सो व्हेन दिस रिएक्शन इज कंपेयर्ड विथ म्यूटेशन, द नेम ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड इज mutase. Okay, and this is reaction number what? Reaction number 8. Now after 8th reaction, due to involvement of water group, a new functional group is formed over here, and that new functional group is enol functional group. अब यहां पर मॉलिक्यूल तेजी से अपने आप को कन्वर्ट करते जा रहा है। मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म को एक भी मौका नहीं दे रहा है अनस्टेबल होने का। मॉलिक्यूल खुद ब खुद स्पीड में चेंज होगा। तो ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इनॉल फंक्शनल ग्रुप इज फॉर्म ओवर हियर, एंड द नेम ऑफ मॉलिक्यूल बिकम फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड, PEPA. So what is the full form of PEPA? I am writing over here. It is first P for phospho, E for enol, another P for pyruvic, and last A for acid. Phosphoenol pyruvic acid is formed as a result of reaction number 9. As there is a formation of enol group, then enzyme required is enolase. नीचे लिख देता हूं, enolase, ENOLASE, enolase enzyme is required, and two molecules of pyruvic acids are formed. Finally, as this is last reaction, अब बारी आती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म अनस्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल को चेंज करने की कोशिश करता है। उसी को रिएक्ट करने के लिए मॉलिक्यूल अपने पास का, देखिए ध्यान से, अपने पास का जो एक फास्फोरस बचा था ये भी एलिमिनेट कर देगा। तो जिस तरह से रिएक्शन नंबर 7 में हुआ, ठीक उसी तरह रिएक्शन नंबर 10 में होगा कि मॉलिक्यूल से फास्फोरस एलिमिनेट हो गया। अब वो फ्री फास्फोरस है, उसे इनऑर्गेनिक फास्फोरस कहेंगे, एंड दैट इनऑर्गेनिक फास्फोरस एडेड अप इन ADP टू फॉर्म व्हाट? ATP. So each molecule of phosphoenol pyruvic acid, because there are two molecules, so each molecule undergo dephosphorylation. Phosphorus eliminate हो रहा है ना भाई, तो dephosphorylation, and as a result of dephosphorylation, phosphorus and enol group also get lost, and remaining only pyruvic acid. This is the last or end product of glycolysis pathway, PA. The full form of PA is pyruvic acid, and there is a formation of, yes, there are how many molecules of ATP form over here? 2 molecules of ATP. 2 molecules of ATP are formed, and 2 molecules of pyruvic acid also get formed as a end product, because this is what? This is reaction number 10. And what is the type of this reaction? क्या नाम देना चाहिए हमने इस रिएक्शन को? क्योंकि फास्फोरस एलिमिनेट हुआ,
Yes, of course, the type of reaction is dephosphorylation. It is dephosphorylation reaction. And ATP produces. In reaction number 7 also, there is a formation of 2 ATP. In reaction number 10 also, there is a formation of 2 ATP. So that you can say that in payoff phase, अब वापस यहां पर आ जाइए, जो शॉर्ट मैप हमने तैयार किया था, रिएक्शन नंबर 7 gives 2 molecule of ATP. It is very easy calculation. मुझे पता नहीं कि बच्चे क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, इसके शायद 2 पार्ट बन सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 1, ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 2। कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस अगर आपने अच्छे से ध्यान से स्टडी कर लिया तो आपको कोई चैलेंज नहीं, आपको किसी डाउट की कोई जरूरत नहीं कि सर कितने एटीपी फॉर्म होंगे, कितने प्रोड्यूस होंगे। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन ऑफ एटीपी कितना है, हम उसी पर अभी पहुंच रहे हैं। So 2 ATP are formed or produces by reaction number 7. Again, 2 more ATP are produces by reaction number 10. So total there is a formation of how many ATP? 2 ATP plus 2 ATP will become 4 ATP. तो रिएक्शन नंबर 7 और रिएक्शन नंबर 10 दो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, टोटल एटीपी फॉर्मेशन हो गया 4। अब हमको कैलकुलेशन को बैलेंस स्टेज में लाने के लिए रिएक्शन नंबर 1 ने जो एक एटीपी कंज्यूम किया, रिएक्शन नंबर 3 ने जो एक एटीपी कंज्यूम किया था, वो कंज्यूम होने वाले एटीपी निगेटिव माने जाएंगे, प्रोड्यूस होने वाले एटीपी पॉजिटिव माने जाएंगे। यानी रिएक्शन नंबर 7 के 2 एटीपी पॉजिटिव, रिएक्शन नंबर 10 के 2 एटीपी पॉजिटिव क्योंकि वो प्रोड्यूस हुए, और रिएक्शन नंबर 1 का एक एटीपी निगेटिव, एंड दिस इज सेकंड निगेटिव एटीपी फ्रॉम रिएक्शन नंबर 3 बिकॉज दे आर यूटिलाइज्ड। फॉर्म होना, प्रोड्यूस होने की जगह वो यूटिलाइज हो गए। तो टोटल 2 एटीपी आपके निगेटिव हैं और 2 एटीपी 4 एटीपी पॉजिटिव है। तो निगेटिव वाले रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 3 मींस -1 एटीपी फ्रॉम रिएक्शन नंबर 1, -1 एटीपी फ्रॉम रिएक्शन नंबर 3। सो देयर इज निगेटिव ऑफ 2 एटीपी। इट इज वेरी सिंपल। अब आप बैलेंस कर लीजिए पूरे ग्लाइकोलाइसिस के 10 रिएक्शंस में, तो +4 एटीपी एंड दीज आर द -2 एटीपी, you will get +2 molecules of ATP, and these +2 molecules of ATP are the net gain of ATP of glycolysis। कुछ बुक्स में आंसर दिया होता है 8 ATP नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। मैं आपको बताता हूं और डिटेल में कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होगा तब वो 8 ATP आएंगे। बट इफ यू हैड आस्क्ड एन क्वेश्चन हाउ मेनी नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, सो दिस 2 ATP आर द नेट गेन ऑफ ATP ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। रिमेंबर ऑलवेज, पॉजिटिव नहीं भी लिखे तो चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस एंड 10 डिफरेंट रिएक्शंस। एक बार वेरी फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। Glycolysis always start from the glucose. What is the location of glycolysis? Cytoplasm of the cell. Glycolysis is aerobic or anaerobic? Yes, of course it is anaerobic because it did not require the oxygen. It takes place in the cytoplasm. So this mechanism काम थोड़ा सा उल्टा हो गया, हेडिंग स्टार्ट में डालना चाहिए था, हम हेडिंग लास्ट में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, पर कंसेप्ट पूरा प्रिपेयर होना ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है, आपसे ऐसी उम्मीद है कि आपने अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर किए होंगे। और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस से हो तो आप ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में बगैर झिझक के, बगैर किसी हेजिटेशन के आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं। ऑफकोर्स मैं उसके ऊपर आपको बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा, एकदम सिंपल वे में,
और आपके कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। सो दिस इज व्हाट ग्लाइकोलाइसिस, और इट इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? यस, ऑन द नेम ऑफ डिस्कवरर, EMP. What is the full form of EMP? Embedden, Meyerhoff and Paranas. So this is EMP pathway consisting on 10 different reactions. First 5 reactions are preparatory, last 5 reactions are payoff phase. तो ग्लूकोज सेल के अंदर आया, साइटोप्लाज्म ने एटीपी से अटैक किया, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bis phosphate cleavage, 2 molecules, DHAP further converts into PGL, एक PGL ओरिजिनल, एक कन्वर्टेड, 2 molecules of PGL, इसीलिए सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। एक PGL की रिएक्शन है और एक डुप्लीकेट मतलब कन्वर्टेड PGL की रिएक्शन है। तो इस तरह से आपको याद रखना है रिएक्शन नंबर 1, 3 फ्रॉम प्रिपरेटरी फेज एंड रिएक्शन नंबर 7, 10 फ्रॉम पे ऑफ फेज, और इन 4 के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 6, बिकॉज इट इज अ सिंगल रिएक्शन इन द कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस विच इज सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस 2 molecules of NADH2. What is the full form of NAD? Nicotinamide adenine dinucleotide. I am revising.